Welcome to the Future Tech Spotlight online learning platform. Before we start with the real implementation of this DBMS, we start with the basics. Why we require the database? Because we want to store day-to-day life data. Maybe the data is super store data, or maybe in the medical field, or every time we are generating data, if you are clicking your mobile phone, if you are sending messages, or you are just click like button, so that is also one type of data we are generating. So day to day life we are generating our data. You can say, if you track the data generation, then exponentially we are generating the data day by day. Okay, so how to handle this type of data and how we can efficiently store the data, that is what the all about database management system. Okay, so there are so many types of database, like structured data, non-structured data, semi-structured data. There are different types of data we require to store. Like if we want to store the data like student data with the all details, like their marks and their performance, or everything about the student, then it is a kind of structural data where we will get some keywords, or some primary keys are also there to identify the rows. But sometimes we are having data where there is no identification keys. Okay, now suppose we are having data, let's say your Google, let's say Facebook post. Okay, this is also one type of data, Facebook comments और फेसबुक पोल. ठीक है, तो अब जो फेसबुक कमेंट का डेटा है, that is not, that data is not having any type of uniqueness for the row identification. So in that case, what happened, we require to handle that type of data differently. So again, we are having some semi-structured data like XML file, where the data is in the form of some structured but not the fully structured data. So that is also there. So many different types of data are there, and there is a way to handle each and every type of data. But if you want to use this different type of data at one time, then how we can do that? Okay, now suppose you want to analyze the data, and suppose you are having some superstore data. Let's say, you can say Big Bazaar outlet, but that outlet is in different 5 states. Okay, and one state is handling data in the form of Oracle structure manner, and in another, let's say outlet, data is stored in the form of text file, and in other, in the third outlet data, they are storing in the Excel file. So now the way they are storing the data is different for all the 3 outlets. But you want to summarize the data based on all the 3 outlets. Okay, so how you can summarize the data? Okay, because data format is different. Okay, so in that case you require a kind of OLAP structure, so that it will take the data as a primary data, and then after we can use that data at once, all 3 type of data at once, and we can analyze and visualize the data, and we can make some prediction based on that data. So that is what we required in our database system. Okay, but the basic unit where we require to store our data is your let's say cell or table. Okay, so now in this table you require to store data, and the structure to create the data is create table, table name, and then column and data type. Select query, you all know, whenever you want to select any data, you can create the command, you can use this command. Okay, तो यहाँ तक हमको पता है कि कैसे करना है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, वेयर यू कैन गिव द कंडीशन के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर टेबल के ऊपर कंडीशन होगी, और उसके हिसाब से आप टेबल के रोज का सिलेक्शन कर सकते हो. ठीक है, सो देयर आर 2 वेज, प्रोजेक्शन एंड सिलेक्शन. सिलेक्शन और प्रोजेक्शन क्या होता है? तो प्रोजेक्शन मींस नंबर ऑफ कॉलम में से कोई कॉलम आप सिलेक्ट कर रहे हो डिस्प्ले के लिए, तो वो स्टार की जगह पे आएगा. ठीक है, सो लेट्स से सपोज सिलेक्ट लास्ट नेम कॉमा जॉब आईडी. तो लास्ट नेम और जॉब आईडी क्या है आपका? 2 कॉलम्स वेर यू आर हैविंग लेट्स से 5 कॉलम टेबल. 5 कॉलम टेबल में से आप सिर्फ 2 ही कॉलम क्या कर रहे हो, अभी डिस्प्ले करने जा रहे हो. ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम वेर
last name is equal to Mathur. Now this is the selection. Your where clause is selection. और सिलेक्ट के बाजू में जो आप लिखते हो दैट इज प्रोजेक्शन. ओके, सो सिलेक्शन में हमने वेयर क्या क्लॉज लिखा है, वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू माथुर. दिस इज द कंडीशन टू सिलेक्ट द रो. So that way you can select a number of rows. Clear everyone? Okay, so this is what the select query with the condition. एक basic select query हम लोग देख लेते हैं. So what you require to do is, क्या करना है आपको, अभी आपको लॉगिन करना है लाइव एसक्यूएल के अंदर. क्या करना है, लॉगिन कैसे करेंगे आप, तो जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं गूगल में जाओ, पहले सबसे पहले गूगल, ठीक है, गूगल में जाने के बाद, अरे ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ लिखना है लाइव एसक्यूएल. ऑल द स्टेप्स आर देयर इन द असाइनमेंट, सो यू कैन फॉलो दैट स्टेप्स. लाइव एसक्यूएल पे क्लिक किया आपने, तो जो पहला ओरेकल लाइव एसक्यूएल का लिंक मिल रहा है उस पे क्लिक करना है. एंड देन आफ्टर यू रिक्वायर टू क्रिएट क्रेडेंशियल. ठीक है, तो यहाँ पे साइन इन का बटन दिख रहा है सबको. ठीक है, ये जो साइन इन बटन है वहां से आपको लॉग इन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है इफ यू आर नॉट क्रिएटेड. एंड आफ्टर लॉग इन यू रिक्वायर टू क्लिक ऑन स्टार्ट कोडिंग नाउ. इस पे क्लिक करना है. ठीक है, इस पे क्लिक करने से क्या होगा, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर स्क्रीन. ये वाली स्क्रीन मिलेगी आपको. ठीक है, ठीक है, ये स्क्रीन मिलेगी. अब ये स्क्रीन से क्या होगा, तो ये स्क्रीन से यहां पे हम क्वेरी लिखेंगे और नीचे उसका आउटपुट आएगा. ठीक है, सो यहाँ पे क्वेरी कैसे लिखेंगे, सो बिफोर राइटिंग द क्वेरी दैट टेबल मस्ट बी देयर, राइट. सो सम सैंपल टेबल्स आर देयर इन दिस स्कीमा. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्कीमा है, बहुत सारे स्कीमा है यहाँ पे, बट वी आर interested in this EMP and DEPT schema. So these tables are there under Scott schema. ठीक है, 2 tables are there under Scott schema. So if I want to access this particular table EMP and DEPT, I require to use this schema Scott. Okay, so now we will go for the SQL worksheet, and I will write select star from table name, table EMP, बट उसका स्कीमा क्या है, स्कॉट. तो ऐसे आपको टेबल को यूज करना है. ठीक है, तो दिस इज द टेबल. ओके, तो ये पूरा टेबल अवेलेबल होगा आपको एक्सरसाइज करने के लिए. द सेम वे डीपीटी. क्लियर? नाउ इन योर असाइनमेंट, in your assignment I have given another table. The table structure is this. You are able to see this word file, students? Yes ma'am. Okay, thank you. Yes, thank you. So this table you require to create, where we are having 4 columns in this table, and the column name is time, region, department and profit, and the table name is department. Okay, and then after you require to add this or insert this rows, you can say. Okay, तो वो कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्रिएट टेबल का कमांड आएगा, और क्रिएट टेबल के कमांड में नंबर, वेरकेर और नंबर, ये क्या है इसके डेटा टाइप, और ये क्या है उसका साइज. प्रॉफिट के अंदर 10,2 का मतलब है कि 2 फ्लोटिंग वैल्यू इज ऑल्सो देयर, सो मीन्स दिस इज नॉट द होल नंबर, दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. क्लियर? तो उस हिसाब से टेबल क्रिएट करना है, और उसके अंदर ये जो रोज है उसको इंसर्ट करना है. So this way you can create table, and after creating table you require to add this rows. Okay, so rows are created, and then now we can see the table. Select star from department. ठीक है, so yes, we are having all the data in this department, whatever we are having in this assignment. Okay, now if I want to see all the data, then select star.
But if I want to use projection, projection means only number of columns. So हमें क्या करना है अभी? प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन मतलब आपको जितने भी कॉलम्स है, यू डोंट वांट ऑल द कॉलम्स टू डिस्प्ले एंड ओनली नंबर ऑफ कॉलम्स. तो नाउ सपोज मुझे टाइम एंड रीजन दो ही चाहिए, सिर्फ टाइम और रीजन. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. ओके, ओनली 2 आर देयर. सो यहाँ पे कॉलम सीधा सीधा कम हो गया. बट अगर मुझे कॉलम को कम नहीं करना है, मुझे रोज को कम कर देना है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन. ओके, सो देयर वी विल यूज वेयर क्लॉज. वेयर लेट्स से प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 76,000, लेट्स से फॉर एग्जांपल. ओके, so these are the value. So now one of the value is 75, पहला वाला ही है 75, 74, वो यहाँ पे रो नहीं आएगा. Now after selection, now in selection you can use any type of expressions, operators, equal to, greater than, equal to, less than, equal to, not equal to, any comparison operator you can use. Okay, and then after, if you want data in the ascending or descending order, then order by is there. डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर चाहिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मिल जाएगा डेटा, या फिर असेंडिंग. लाइक प्रॉफिट इज नॉट देयर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हम यहाँ पे ऑर्डर बाय प्रॉफिट करेंगे तो डेटा कैसे आएगा? असेंडिंग ऑर्डर में. यहाँ पे देख सकते हो आप, डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया. अब डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए तो DESC इज द कमांड फॉर द डिसेंडिंग. क्लियर? तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया. सो दैट वे यू use ASC is by default. ठीक है, this is the default arrangement, and descending you require to use DESC keyword. Okay, for your data. अब now multiple column के ऊपर भी आप कर सकते हो ये. ठीक है, multiple column के ऊपर कैसे करेंगे? Let's say region comma profit. ठीक है, तो वो अगर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे किया हुआ है तो कैसे होगा? पहले रीजन के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर लगेगा, तो 2 सेंट्रल है, वो 2 सेंट्रल के अंदर प्रॉफिट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा. जितने भी ईस्ट है उसके अंदर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, जितने भी वेस्ट है उसके अंदर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में. सो लाइकवाइज यू कैन यूज, मतलब यू कैन ऑर्डर कॉलम एज मेनी एज यू वांट. ओके, सो दिस इज व्हाट द ऑर्डर बाय क्लॉज. ये हमने देखा कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग किया जाता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्रुप बाय फंक्शन. नाउ व्हाई द ग्रुप बाय फंक्शन? सपोज आई वांट काइंड ऑफ लेट्स से profit department wise. See, we are having 4 columns: time, region, department and profit, right? And I want profit department wise कि total profit कितना हुआ है department wise. तो उसके लिए क्या करना होगा? So remember one thing, whenever we are using group by clause, in the group by clause we require to use aggregate function because we are grouping the data. So whenever you are grouping the data, it means you required either maximum, minimum, average, some type of aggregation you want, or count. If the column is string column, तो आप count भी use कर सकते हैं. ठीक है, so that way you require to use any one of the aggregate function. Okay, so now suppose simple group by करते हैं. group by कौन सा? डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट चाहिए. ठीक है, सो डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट, तो हम यहाँ पे करेंगे सम ऑफ प्रॉफिट. ओके, और डिपार्टमेंट वाइज चाहिए तो DEPT कॉमा. ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम है डिपार्टमेंट. ग्रुप बाय कैसे करना है हमें कि डिपार्टमेंट वाइज चाहिए तो DEPT. ठीक है, तो यहाँ पे देखो रन करने से क्या पता चल रहा है. ओके, सो वी हैव डिपार्टमेंट पेन सेल एंड बुक सेल, और उसका टोटल प्रॉफिट कितना है वो यहाँ पे आ गया. क्लियर हुआ सबको ये? अब हम यहाँ पे अगर लेट्स से सिर्फ यहाँ पे करते हैं सम ऑफ प्रॉफिट, तो क्या आएगा यहाँ पे? तो भी आपको दोनों ही मिलेगा, पर ये डिपार्टमेंट वाइज है. बट ये मीनिंगफुल आउटपुट नहीं है. ये क्या दिखा रहा है वो पता नहीं चल रहा है. इसीलिए हमने साथ में क्या लिया? डिपार्टमेंट की कॉलम भी यहाँ पे डिस्प्ले की है. ठीक है, डिपार्टमेंट कॉमा सम ऑफ प्रॉफिट, और यहाँ पे आप एज टोटल प्रॉफिट
टोटल प्रॉफिट, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके कॉलम का नाम हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको ये, ठीक है। अब यस, सपोज मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट देखना है हर डिपार्टमेंट का, ठीक है, या फिर हम टाइम जोन से करते हैं कि टाइम का मैक्सिमम प्रॉफिट, उस ईयर में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ग्रुप बाय टाइम। तो देखो ये ग्रुप बाय टाइम आ रहा है, ठीक है। 1996 का मैक्सिमम प्रॉफिट ये है और ये है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने सिलेक्ट स्टार किया तो आपको क्या मिल रहा है, सिलेक्ट स्टार ग्रुप बाय, दिस विल गिव एरर। ओके, क्यों एरर देगा ये, कि आपने टाइम तो ग्रुप बाय किया है, ठीक है। तो टाइम को ग्रुप बाय करने पे लेट्स से यहाँ पे हम लोग this is your comment section, select star from department, यहाँ पे फ्रॉम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है। ये जब हम ग्रुप बाय टाइम करेंगे ना तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट करते हैं तो ये डेटा आ रहा है। जब हम टाइम को ग्रुप कर देते हैं, मतलब ये सारा जो 1996 का डेटा है, एक जैसा डेटा जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो जब ये डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो इधर इकट्ठा होके क्या करना है, क्या डिस्प्ले करना है, या इधर एक साथ जो रो है उसको एक साथ करके क्या डिस्प्ले करना है। इसको तो हम एक साथ करके उसका सम या मैक्सिमम या मिनिमम क्लिक कर सकते हैं, पर ये इन दोनों के बारे में क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए इस टाइप का अगर ग्रुप बाय है तो आप सारे के सारे कॉलम को नहीं दिखा सकते। जनरली जो स्ट्रिंग वैल्यूज है, वैसी वाली जो कॉलम है उसमें आपको आइदर काउंट यूज करना पड़ेगा या फिर काउंट यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके बिना ये नहीं चलेगा, ठीक है। सपोज मुझे ये जानना है कि ईयर वाइज कितने रीजन का डेटा है ये, ठीक है। तो कितने रीजन का डेटा है वो कैसे मिलेगा, ईयर वाइज, ठीक है। तो यहां पे अब आएगा काउंट क्या करना है, रीजन फ्रॉम डिपार्टमेंट ग्रुप बाय टाइम, क्लियर। सो यहां पे हम टाइम भी दे सकते हैं और उसका काउंट ऑफ रीजन भी दे सकते हैं। ये समझा सबको अभी कि 6 डेटा जो है वो रीजन का 1996 में है और 6 डेटा 1997 में है। क्लियर हुआ सबको, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ स्टूडेंट्स, ओके। सो यहां पे क्या हो रहा है, ग्रुप बाय फंक्शन ऑपरेट्स ऑन अ सेट ऑफ रो टू गिव रिजल्ट, 1 रिजल्ट पर ग्रुप। हर ग्रुप का एक ही रिजल्ट आएगा और वो पूरी की पूरी जो रो है उसको क्या कर देगा, ग्रुप कर देगा। जितनी भी रो उसमें आती है वो ग्रुप में उसको क्या कर देगा, वो क्यूमुलेटिव डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, एवरेज सैलरी का डेटा है ये, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट होगा और सिलेक्ट में क्या आएगा, एवरेज सैलरी, ठीक है। सो दिस वे यू कैन डू दिस, ओके। अभी हमने बात की थी कि ग्रुप बाय क्लॉज जब एक्सप्रेशंस देते हैं, ग्रुप बाय एक्सप्रेशन, ठीक है, तो हमको वैसा डेटा नहीं डालना है, ठीक है। देखो, ऑल कॉलम्स इन द सिलेक्ट लिस्ट दैट आर नॉट इन ग्रुप फंक्शन मस्ट बी इन द ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारा का सारा डेटा जो है वो डिपार्टमेंट का, वो सारा का सारा होना चाहिए। अगर कुछ डिपार्टमेंट के एंगेज्ड में कुछ सैलरी नहीं है, ठीक है, कुछ सैलरी का इंडिपेंडेंट डेटा है, तो वो कैसे आएगा फिर, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ पे नल आ जाएगा, ठीक है, कि वहां पे कोई डेटा नहीं है पर एवरेज सैलरी का डेटा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने जो देखा वही यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ठीक है। नाउ सपोज यू वांट टू गिव सम कंडीशन ऑन ग्रुप बाय आउटपुट। ग्रुप बाय आउटपुट कुछ भी आ रहा है उसके ऊपर कंडीशन देनी है, ठीक है। तो वो कंडीशन कैसे देंगे हम, तो फॉर दैट यू रिक्वायर्ड हैविंग क्लॉज,
ठीक है, कि ग्रुप बाय प्रॉफिट, और ऐसा डेटा चाहिए कि वही डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए जिसका प्रॉफिट ग्रेटर देन लेट्स से 1 लाख है, ठीक है। तो सारे डिपार्टमेंट का डेटा नहीं आएगा, जितना है उतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करके देखते हैं हम लोग। अगेन वी विल गो फॉर, हमको वो लिख कर रखना चाहिए यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। अरे ठीक है, और इसको रन करते हैं पहले, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीजन वाइज प्रॉफिट, हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट लेते हैं, रीजन वाइज मैक्सिमम प्रॉफिट, और जिस रीजन का मैक्सिमम प्रॉफिट ग्रेटर देन 75 है वो ही दिखना चाहिए, ठीक है। समझ में आया सबको क्या करना है हमको? यहाँ पे रीजन वाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाय, ठीक है। तो ग्रुप बाय रीजन सबसे पहले, ठीक है। और वही डेटा यहाँ पे हम डाल देंगे, एवरेज मैक्सिमम सैलरी, सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, विथ रीजन, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे और भी क्या डालना है, हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज क्यों डाल रहे हैं हम लोग कि इसमें हमें कितने आउटपुट मिलेंगे, कौन, तो जितने भी रीजन एक जैसे है उसको क्या कर लेगा, ग्रुप कर लेगा, और वो ग्रुप का एक ही रो वो एज ए आउटपुट देगा, ठीक है। तो सेंट्रल के जितने भी डेटा है, जैसे सेंट्रल के डेटा कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, उसमें से मैक्सिमम कौन सा है, 8500, ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमें ग्रुप वाइज, क्या हुआ, कमेंट्स नॉट टर्मिनेटेड प्रॉपरली, अच्छा ठीक है। तो हमारे पास 3 डेटा है। अब हमने सपोज ये क्वेरी वापस से फर्दर लिखी है जिसमें हमने हैविंग क्लॉज लिखा, हैविंग मैक्सिमम प्रॉफिट को हमें नाम देना होगा एज मैक्स प्रॉफिट, ठीक है। तो मैक्स प्रॉफिट, हैविंग मैक्स प्रॉफिट ग्रेटर देन, लेट्स से हम लोग लेते हैं 86000, ठीक है। सो यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट ग्रेटर देन 86000 किया, तो सेंट्रल वाली जो कॉलम है वो यहाँ से निकल गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ये कंडीशन पे मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। सो नाउ when you want normal selection you required where clause, but when you required selection on group you required to use having clause. Clear everyone? ठीक है। तो ग्रुप बाय के ऊपर अगर हमें वापस से कंडीशन चाहिए कुछ तो आपको हैविंग यूज करना है। क्लियर हुआ सबको? सो दैट वे यू कैन यूज हैविंग क्लॉज। और ऑर्डर इवोल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले वेयर क्लॉज, उसके बाद ग्रुप बाय, उसके बाद हैविंग। हैविंग ऑलवेज लास्ट में ही होता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।